خون کی ہولی بند کرو، کی ہولی بند کرو، خون کی ہولی بند کرو، وہی وار وہی وار دہشت گردی نہیں چلے گی، دہشت گردی نہیں چلے گی، دہشت گردی نہیں چلے گی، معصوموں کا قتل عام بند کرو، معصوموں کا قتل عام بند کرو، معصوموں کا قتل عام بند کرو، بند کرو، بند کرو، جس کا بھی جو یہ ہوا یہ نندنیہ ہے اور سراسر غلط ہے، کیونکہ جو باہر کے یاتری آئے تھے اسی سے جموں کشمیر کا جو فائنانس بنتا ہے اور جموں کشمیر کے 6 مہینے یہ حالات ٹھیک رہتے ہیں اسی سے رہتے ہیں، مگر جو وہاں سیکورٹی لیپس ہے، میں سیکورٹی پر بھی کہتا ہوں کہ وہاں وہ وداؤٹ وہاں گاڑی نہیں پہنچتی ہے، گوڑوں سے وہاں آگے جانا پڑتا ہے، ان کو کیسے سیکورٹی نے الاؤڈ کیا؟ سیکورٹی کو الاؤڈ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہاں کی پولیس تھی، وہاں کا ڈی ایس پی تھا، ایس پی تھا، ان کو ایسی جگہ نہیں بھیجنا چاہیے کہ جہاں ان کی پروٹیکشن ہو۔ وہاں کچھ لوگ یہ کہ کہتے ہیں کہ وہاں آرمی کیمپ بھی ہے، وہ کیمپ والے کہاں تھے کہ اتنے منٹوں میں اتنا حادثہ ہو گیا، ہمارے 27 آدمی وہاں باہر کے مارے گئے، اور یہ کون سی اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ کیوں ہوا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں کی جو ہمارا یاتری ہے اس یہاں کے جو ڈیولپمنٹ یا ٹورز ہے اس پر کافی اثر پڑتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم سیکورٹی زیادہ سے زیادہ یہاں سیکورٹی رکھی جائے، اور سیکورٹی لیپس ہی ہے، اس کو میں سیکورٹی لیپس مانتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کے لیے کیا میسیج رہے گی آپ کو ایز اے انسان کے ناطے؟ جن لوگوں نے آج پروٹیسٹ کیا ہے، جن لوگوں نے جو بیسرن میں یہاں کے ٹورسٹوں کو مارا، کیا کہنا چاہتے ہیں ان کو؟ یہ تو سازش، سیدھی سازش ہے، پاکستان کی سازش ہے۔ یہاں کے کوئی اگر آدھا سول انوالو بھی ہوگا، مگر عام طور یہ سازش پار والوں کی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ یہاں کی کمیونٹی بدنام ہوتی ہے، یہاں کے لوگ بدنام ہوتے ہیں۔ پاکستان کو اگر جنگ کرنا ہے تو سیدھا جنگ کرے، یہ ڈرامے بازی مت کرے کہ یہاں کے لوگوں کی ہلاکت مت کرے، کہ اس سے ہمارے جموں کشمیر کے بھائی چارہ اور انسانیت پر اثر پڑتا ہے۔ جی، نیشنل کانفرنس ان ایکووکلی کنڈیم کرتا ہے جو کل ٹیرر اٹیک ہوا پہلگام میں۔ آج نیشنل کانفرنس کی ساری اکائیاں نکلی ہے ان سالیڈیرٹی ود دا ٹیرر وکٹمز، اور ہم پوری کنٹری کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس ٹیرر اٹیک، ٹیررزم کے خلاف ہیں، اور جو سالیڈیرٹی مارچ آج ہم کر رہے ہیں برابر گھنٹہ گھر تک کریں گے، اینڈ آج پورا کشمیر، پورا جموں کشمیر رو رہا ہے۔ یہ ڈارک ڈے ہے جو کل ہوا، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ان جو پرپیٹیٹرز آف دس کرائم ہے ان کو بے نقاب کیا جائے، اور ایک جو ہم نے بار بار بولا ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے بائی اے سٹنگ سپریم کورٹ جج کہ کہاں پر سیکورٹی لیپس ہوا ہے، کون لوگ اس میں ریسپانسبل ہیں۔ تھینک یو۔ انسانیت کا قتل ہے، آج ہر ایک کشمیری باہر نکلا ہے، ہر ایک کشمیری اس کو کنڈیم کر رہا ہے۔ یہ کوئی دین کے لیے، یہ کوئی اسلام کے نام پہ، یہ کوئی اس کے نام پہ نہیں ہے، یہ قتل ہے، یہ انسانیت کا قتل ہے، اسی کے لیے ہر ایک آدمی آج باہر نکلا ہے اور اس چیز کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کافی نقصان ہوا کشمیر کو؟ کشمیر کو، پوری انسانیت کو نقصان ہوا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہر ایک رائٹ تھنکنگ پرسن جو جموں کشمیر کا ہے اس کو باہر آ کر اس چیز کو کڑی شبدوں میں مذمت کرنی چاہیے۔ پروٹیسٹ نہیں ہے، ہم ماتم منا رہے ہیں۔ کل جتنی وہ بے گناہ جانیں ضائع ہوئی ہیں، یہ انسانیت کے خلاف ایک جو قدم ہے، اس کے خلاف ہم پہلے بھی رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس نے جو ہے ملیٹنسی کا پہلے بھی اس کی شکار رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں اس کا درد کتنا ہے۔ ہم آج خود کو شرمندہ محسوس کرتے ہیں کہ ان گھر والوں کو ہم کیا جواب دیں گے جو یہاں اپنی سیر کے لیے آئے تھے، ہماری اقتصادیات کو بڑھانے کے لیے آئے تھے، اور ان کا اس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ کتنا بڑا نقصان مانتے ہیں کشمیر کو؟ یہ پہلے ہمارے وجود کے خلاف ہی ہے۔ جموں کشمیر ہمیشہ اس بات کے اور آپسی بھائی چارے کا گہوارہ مانا جاتا تھا۔ ان حرکات سے ہمارے اس جو ہے کیریکٹر کو وہ اس نظریے سے اب نہیں شاید دیکھا جائے گا، لیکن اپیل یہی ہوگی کہ اس کو ایک جنرلائز جو ہے الزام نہ دے کے یہ سمجھا جائے کہ یہ خالصاً ایک ملیٹنٹ ایکٹ ہے، ایک دہشت گردی کا قدم ہے، اور جس کے خلاف ہم سب
मिल के लड़ेंगे और इसको खत्म करेंगे। हम आज सारे कश्मीरी इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वी आर प्रोटेस्टिंग दिस विद आवर ऑल होल हार्ट्स। आज आप देख रहे हैं कि आज कश्मीर में एक एक बच्चा इसके लिए स्टैंड हुआ है और वो इसके बारे में आज इस दुख का इजहार कर रहा है। आप देखिए दाएं बाएं जितने भी हमारे प्राइम मार्केट्स हैं वो सारे बंद हैं और हम हर कोई कश्मीरी इसका कंडम करता भी है और करता रहेगा टू द कोर, एंड वी वांट जस्टिस फॉर ऑल दोज इनोसेंट पीपल्स हु गॉट किल्ड। और आज कल जो वाक़या पेश आया है, 26 से 27 लोग मारे गए हैं, उनके लिए हमने दुआ की है। जो ज़ख्मी है उनके लिए दुआ की है और जो चले गए उनके लिए हमने शांति की है। तो इसलिए जिन्होंने भी ये काम किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और यहाँ पर हम 90 के ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ हैं और उन्होंने हम सब ने दुआ की है उनके लिए। जो ज़ख्मी हैं उन सब के लिए, जो चले गए उनके लिए शांति की दुआ भी की है। बहुत कल से जब से हमने सुना है, इधर 90 के करीब लड़कियां हैं, हमने जब से कल से सुना है कि उनके कल इतना बड़ा हंगामा हुआ है, तो कल से सब लड़कियां शौक में हैं कि ऐसा समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो कैसे सकता है, ये सब हुआ है। इसलिए उनको जिन्होंने भी ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ घोड़े वाले थे, कुछ गरीब थे, कुछ कैसे थे, अपने अपने घरों से निकले थे, लेकिन क्या पता उनको कि वापस जाना भी है या नहीं जाना है। इसलिए उनके लिए जिन्होंने ये किया है उनके लिए है कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और बच्चियां यहीं रहती हैं, ये सब दुआ गो हैं, दुआ कर रही हैं उन परिवारों के लिए जो परिवार बेचारे परेशान किए गए, जो दूर से आए हुए थे, हमारे रियासत में आए हुए थे, हमारे मेहमान थे, हमारे गेस्ट थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि हम घर वापस लौट सकेंगे या नहीं लौट सकेंगे। कुछ दरिंदा सिफ्त लोगों ने उनको मार दिया, उनके साथ गंदी हरकतें कर दी, घिनौनी हरकतें कर दी। एक बेचारा घुड़सवार घर से रोज़ी रोटी कमाने निकला था, उसके बच्चे रोज़ी रोटी का इंतज़ार कर रहे थे पीछे कि शाम को पापा लौटेंगे और कुछ देंगे और हम खाना खाएंगे, लेकिन बच्चों को भी क्या मालूम था कि पापा को भी आज मार दिया जाना है। कुछ लोगों ने 26-27 के करीब लोगों को मार दिया, गंदी हरकत की है। ऐसी हरकत जानवर भी नहीं करते, ऐसी हरकत कीड़े मकोड़े भी नहीं करते, ऐसी हरकत चरिंद और परिंद भी नहीं करते। इंसान नहीं है ये लोग, इंसानियत इनसे शर्मा रही है। ये इंसानियत के नाम पर दब्बा हैं और इनका कोई मज़हब भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि मज़हब तो कोई भी मज़हब हो वो इस चीज़ की तालीम नहीं देता, वो दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, वो टेररिज्म की तालीम नहीं देता है। ये कौन लोग हैं जो मज़हब का लिबास पहनकर मज़हब को की आड़ में बदनाम कर रहे हैं मज़हब को? ये गंदे लोग हैं। हम सारी की सारी इदारे की बच्चियां, इस मदरसे की बच्चियां, उनके लिए दुआगो हैं। और जो परिवार बेचारे इसका हादसे में शिकार हुए उनके साथ हम बराबर के शरीक हैं, उनके गम में शरीक हैं, उनकी हर कंडीशन और हर हालत में हम उनके साथ बराबर खड़े हैं। हमारा मैसेज यही रहेगा कि हमारा मुल्क इस तरह की चीज़ों से बड़ा पाक है। हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। न जाने ये कहाँ से लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। जो हमारा मुल्क इनके लिए मुनासिब समझे, जो हमारी पुलिस इसके लिए मुनासिब समझे, जो हमारी आर्मी इसके लिए मुनासिब समझे, जो हमारे मुल्क चलाने वाले अफराद इसके लिए ऐसी सज़ाएं होनी चाहिए कि आइंदा इस तरह की गंदी हरकतें हमें सुनने को ना मिले। हमारा बच्चा और हम सब लोग इसमें, हमारी आंखें शर्म से नीचे हो गई हैं। हम लोग बहुत शर्मा गए और हमारे दिलों में दर्द पैदा हो गया कि कैसे लोग हैं जिन्होंने इंसानों को मार दिया। जो कल की जो वारदात हुई वो बड़ी निंदनीय है, उसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। और जो धर्म पूछकर जो लोगों ने जो काम किया ये अच्छी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब गए हैं, हर मुल्क में गया है। हमारा भाईचारा आपस में कितना तालमेल और कितना हमारा कारोबार हमारा चल रहा है। इस वजह से पाकिस्तान बखलाया हुआ है और जो आए दिन रोज़ के रोज़ हरकतें करता रहता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं। ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हम एक होकर, पार्टियां सब अलग हैं, हम एक होकर मुकाबला करें ताकि इनको मुंह तोड़ जवाब दें। तो पहले भी देखो पुलवामा में हमला हुआ, कितने हमारे फौजी शहीद हो गए थे, तब भी बड़ी दुख की बात है। लेकिन ये कश्मीरियों के पेट में छुरा मारा इन्होंने, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी का मसला था, उनका कारोबार चल रहा था। पाकिस्तान में है कुछ नहीं, क्योंकि कभी गधे बेच रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी ट्रेनों पर हमले कर रहे हैं, कभी मदरसे पर हमले कर रहे हैं। उनका कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, उनका कोई हमारे से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बखलाया हुआ है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान एक बड़ा
शांति वाला मुल्क है, हम अमन चाहते हैं, लेकिन ये अमन हमारे लिए जे कुछ ना कुछ कोई ना कोई रोज ये पंगे करता रहता है। इसलिए हम इससे कड़ी निंदा करते हैं और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हम सब एक होकर मुकाबला करेंगे, ताकि हम वो POK और पाकिस्तान एक ही हो जाए, हम एक ही ले लें, ताकि हमारे जड़ से वो काम ही ख़त्म हो जाए। पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ, बेकसूरों की जानें ली गईं, उसके लिए ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा, आलमी तहरीक रज़ा एकेडमी और अहले सुन्नत वल जमात की सारी तंजीमों और तहरीकों ने आज उसकी निंदा की है। कल से उसको निंदा किया जा रहा है, कंडम किया जा रहा है और अपने मुल्क के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से ये मुतालबा है ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा का, ये अपील है सुन्नी जमीयतुल उलमा की कि सरहदों पे जारी दहशतगर्दाना जो कैंप जारी हैं उन पर बमबारी की जाए, उन्हें नष्ट किया जाए, बर्बाद किया जाए, वरना इस तरीके से दहशतगर्द मुल्क के अमन व अमान को खराब करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। जिस तरह से नाम पूछ के गोली मारी गई, तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादी थे, कश्मीर से थे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। वो आतंकवादी हैं और आतंकवादी हैं। ऐसे लोगों का न कोई मजहब है न कोई धर्म है। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और वो मुल्क जो इन दहशतगर्दों को पनाह देता है, इन दहशतगर्दों की को पैसा और असलहा देता है, उस मुल्क पर चढ़ाई होनी चाहिए। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस तरीके की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस पाया जाता है, तो यूएनओ भी मुतालबा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए और हिंदुस्तानी हुकूमत से मुतालबा है कि वो पाकिस्तान पर और दहशतगर्दों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। देखिए, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अपने मुल्क में दहशतगर्दी किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस सिलसिले में इसकी मजम्मत की जाती है और जिन लोगों ने भी ये हरकत किया है उनके साथ सख्ती से हुकूमत पेश आए और जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी मजम्मत करें और हम इंशाअल्लाह ताला एहतिजाज और मजम्मत की कार्रवाई बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह ताला करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से रब्ता कर रहे हैं। एक बड़ा एहतिजाज इसके खिलाफ इंशाअल्लाह किया जाए। देखिए, ये किया ही इसलिए जा रहा है कि कश्मीर में जो अमन व अमान कायम हुआ, क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूँ, इसलिए वहाँ जो अमन व अमान कायम हुआ, पिछले कुछ सालों से बहुत सुकून का माहौल और टूरिज्म बढ़ रहा था, लोग सुकून से खा पी रहे थे, अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, तो हमारे पड़ोस के मुल्क को जो है ये भाया नहीं, क्योंकि वो शैतान है, उसका काम फितना करना है, फितना फसाद पैदा करना है, तो उसको भाया नहीं, इसलिए ये फितना फसाद पैदा किया जा रहा है। और रही बात कि जो आपने पूछा कि नाम ले के हमला किया पूछा जा रहा है, तो नाम लेके मारने की वजह यह है कि पाकिस्तान की चाहता है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम टकराव बढ़े, आपस में ना इत्तेफाकी बढ़े और इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से देखा जाए, ना कि आतंकवाद के एंगल से देखा जाए। तो हम ये चाहेंगे कि मीडिया वाले भी और तमाम संजीदा में सुकून वाले दिमाग के हैं वो ये समझें कि पाकिस्तान की प्लानिंग क्या है। वो इस मुल्क के अमन अमान को खत्म करने के लिए, इसको हिंदू मुस्लिम रंग देने के लिए नाम पूछा गया था, वरना दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्दी का कोई ईमान नहीं है। ये दहशतगर्द हैं, इस्लाम से इसका कोई राब्ता नहीं, जो जिहाद के नाम पर और कश्मीर की आज़ादी के नाम पर बेगुनाहों को मारते हैं, वो इंसानियत के दुश्मन है, वो उस मुल्क के दुश्मन है, वो सबके गद्दार हैं। उनकी एक ही सजा है, उन्हें जहन्नम भेजा जाए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद तो है ही है। रही बात यह है कि जिस तरीके से पहलगाम में अब तक जितने भी रिकॉर्ड आए हैं सब यही आए हैं कि पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमें ही हमारे मुल्क पर हमलावर हुई हैं। इसीलिए पहलगाम में जो कल ये वाकया हुआ है, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली वाकया और साथ ही साथ बहुत घिनौना कार्रवाई है। हम जितना इसकी मजम्मत करें, निंदा करें, कम है। हम आज भी ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जिस तरीके से यह नफरत की हवा पाकिस्तान पैदा करने की कोशिश कर रहा है वो कभी कामयाब नहीं होगा, कभी नहीं कामयाब होगा। जो बाशऊर लोग हैं, अक्लमंद हैं, वो ये जानते हैं। अभी आपने बार बार लोगों से पूछा, भाई नाम पूछ के मार रहे थे। मैं आपके मीडिया से कहूंगा कि 2 मुस्लिम वहां इलाकाई मारे गए हैं, कर्नाटक की पूरी फैमिली मुस्लिम मारी गई है। मैं बताइए कि अगर वो मजहब के नाम पर मारते तो इन मुसलमानों को क्यों मारते वो लोग। इससे पता यह चलता है कि दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दुश्मन होते हैं। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद है और पाकिस्तान की जितनी दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सब मुर्दाबाद है। हमारा मुल्क कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है।